Okay, let us start then. Student, we have started irrigation engineering. Okay, and under this there is one topic which is very important in terms of numerical. मतलब कि यहाँ से तुम लोग को न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है. ओके, इन सेमिस्टर और एज वेल एज इन योर गेट ऑल्सो. Okay, so today we will discuss two topics. We will discuss two slides. Okay. Oh, Baba. Okay. So this is our first slide, PPT, which is with introduction to online canal design. Okay. But before this, before discussing this design procedure, okay, we have to have some basic idea what are the different terminologies that will you may face while calculating while designing the canal. Okay, so in this lecture we will discuss those topics only. We will go we will have a brief idea, then we will go to the next lecture. Next lecture will be in brief. Okay. See, as we said that canal design. In irrigation engineering, canal is that, what to say, it is the way of water, okay? Waterway, one kind of waterway. That means we are transferring water from some from some reservoir to the field. Then how we will transfer or how we will transport this water from a reservoir to the field? So for that we have to construct a canal, okay? And canal, it doesn't mean that we will simply dug the earth and we will draw a canal. We will construct a canal, not like that. We have to design it, okay? We have to design in such a manner that we will get certain design discharge, as we already discussed in our previous lecture, that from the reservoir, from the head of the canal, there will be one discharge, and when we reach to the field, there will be, due to some losses, there will be reduction in the discharge. Okay, now why this reduction is occurring? Because our canal has one of the problem was what? Man-made. That means this canal was not properly designed. Okay, or the water from the canal was seeping out. Okay, due to seepage it was transferring to the adjacent area. So the total amount, suppose we were carrying 100 cubic from the starting position, and when we reach the field, it is converted to 90 cubics only. Why? Because of the losses. So here also we have to do a proper canal design so that all these kinds of the losses will be less, okay, as well as it will give us the economic design. Economic means what? Your cost will be lesser than the benefit in terms of monetary or in other, okay, kinds. We will discuss in later classes, but this cost by benefit must be lesser than 1. That means whatever we are using, our sources and all, that must be lesser than the benefit that we will get from the canal. Okay, one example is what? Suppose for construction, if we design the canal in such a way that the cutting, earthwork in cutting is equal to your earthwork in filling. Okay, whatever we cut the earthwork, whatever volume of the earth has been deducted, we will simply add those earth to the embankment also. So that is called economic canal design. Okay, that is one kind of economic canal. Now before starting this canal design and all, we must have some idea that there are two types of
canal design. Okay, first is your drainage channel and another is irrigation channel. Here we are dealing with this topic, irrigation channel. Okay, now canal design means what? We have to determine the some parameters. Say for example, what should be the cross section area of the canal. Okay, in the cross section, then we have to determine what? In order to determine this cross section, we have to determine the bed level. Okay, what is the breadth of the bed, what is the parameter, right? What is the perimeter, what is the depth of the water that it will carry. So all these things must be designed. Mainly cross section area A, perimeter, or we can say depth and breadth of the canal cross sections must be designed. Okay, now what are the other design parameters? See, while designing you will hear one term. Okay, what is that? That is your critical velocity. When we will go to the next lecture, you will see that there is one term which is occurring frequently, which we are using frequently. That is called critical velocity. Okay, I will discuss it in the next lecture. So one term was what? Critical velocity. Okay, and based on this, how to derive this critical velocity, they have two theories are there mainly: Kennedy's theory and Lacey's theory. Okay, Kennedy has derived one empirical formula for this critical velocity, and Lacey has derived another critical velocity formula. Okay, depending upon the characteristics of the segment. That means, see, it is carrying. Basically, these two theories are used for designing the unlined canal. Okay, there are two types of canal again: unlined and lined. Okay, unlined means it is natural. Okay, whereas lined means what? We are lining the side. We are lining this side with concrete. Okay, so that is your lined canal. Whereas this is what? This is unlined canal because it is natural, right? Soil is there. Natural soil is there in the bed as well as on the side slopes. Okay, whereas here, see, it is concreted. Okay, this side slope has been concreting. Okay, so based on this, but these two things, these two theories are basically for unlined canal. Okay, now these are the topics that we will come through while designing canal. Okay, first is alluvial soil, non-alluvial soil, silt factor, coefficient of rugosity, mean velocity. See, there is two velocity. Okay, एक क्या है mean velocity है and another is your critical velocity. Please remember these two velocities. ও অ্যাড হয়েছে তো, আপনি অ্যাড হয়েছে তো? হ্যাঁ ম্যাম অ্যাড হয়ে গেছে ম্যাম। Okay, see here, so these are the terms that we will come across. Okay, मतलब ये सब जानने का जरूरत है. जैसे ये alluvial, mainly हम लोग जो डिजाइन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में जो लेक्चर करने वाले हैं, that is your canal design on the alluvial soil. Okay, unlined canal design on the alluvial soil by Kennedy's theory only. Alluvial soil क्या है? Alluvial soil means what? It is basically formed by deposition of what? Deposition of your silt. Okay, मतलब कि which are permeable in nature. अगर वो ऐसा टाइप का कैनल है जहाँ पे तुम्हारा उसका सॉइल, माटी, सराउंडिंग का जो भी माटी है जिसपे ऊपर कैनल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इफ दैट सॉइल इज एल्यूवियल मींस इट इज परमिएबल इन नेचर. ठीक है, एंड क्या बोलते हैं, ड्यू टाइम इट में चेंज इट्स कोर्स ऑल्सो बिकॉज वो सब सॉफ्ट टाइप का मेटेरियल्स है, राइट? ऑल दोज आर सिल्ट और व्हाट, देयर आर सॉफ्ट टाइप ऑफ सॉइल्स. ओके, सो द चेंज इन द कोर्स में चेंज with time. Okay, whereas non-alluvial क्या है? It is made up of deposition or the disintegration of the hard rock. Rocks को टुकड़ा टुकड़ा करके जो मतलब deposition हुआ है, that is your non-alluvial. मतलब those are impermeable and hard type of soil. ठीक है, तो अगर एक पानी तुम सपोज दो टाइप का सॉइल ले लो, एक में एल्यूवियल लो, एक में नॉन एल्यूवियल लो. एल्यूवियल मतलब है कि सॉफ्ट टाइप का है और नॉन एल्यूवियल इज योर हार्डर टाइप. ओके, एल्यूवियल इज व्हाट? इट इज परमिएबल और नॉन एल्यूवियल इज नॉन परमिएबल क्योंकि ये हार्ड रॉक से बना है, राइट? देन व्हाट हैपेंस?
कौन सा विथ टाइम किसमें कोर्सेस चेंज होने का पॉसिबिलिटी रहेगा? ऑब्वियसली जो सॉफ्ट है, राइट, हार्ड से तो जो पानी का पाथ है इट विल रिमेन इन दैट लाइक दैट ओनली, ओके, बट विथ टाइम ऐसा हो सकता है कि एलुवियल सॉइल से जो पानी जा रहा है, फ्लो हो रहा है, इट में चेंज इट कोर्स, ओके, बिकॉज इट इज सॉफ्ट, वेयर एज हार्ड को तो हार्ड है तो उसको उतना कोर्स में चेंजेस नहीं आएगा, ओके, सो दैट इज कॉल्ड नॉन एलुवियल सॉइल. Now another term is silt factor. ये वाला फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है, okay, silt factor, it depends upon the diameter, mean particle size, mainly this is the diameter of that particle size, okay. ये भी तुम लोग का आ सकता है, मतलब यूज करना पड़ता है in further design procedures, okay. अब ये जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं दैट इज योर व्हाट्स इट कैनेडीज थ्योरी, तो वहां पे देखना यू विल गेट दिस टर्म रुगोसिटी फैक्टर कोफिशिएंट, ओके, कोफिशिएंट ऑफ रुगोसिटी. रुगोसिटी का मतलब है कि रफनेस. सपोज योर कैनल ऐसा होता है, ठीक है. नाउ एज आई सेड कैनेडी थ्योरी कहाँ पे अप्लाई होता है? इट इज एप्लीकेबल फॉर द एलुवियल सॉइल, ठीक है, एंड अनलाइंड कैनल. अनलाइंड मतलब कि यहाँ पे नेचुरल सॉइल है एंड द टाइप ऑफ द सॉइल इज एलुवियल इन नेचर, ओके. तो क्या हो जाएगा कि इसका जो भी सरफेस है, ठीक है, इसका इट विल बी नॉट स्मूथ, देयर विल बी सम रफनेस, अंडुलेशंस होगा, नेचुरल सॉइल है, राइट. सो इसकी वजह से जो फ्लो हो रहा है वाटर, ठीक है, तो इट इज गेटिंग सम काइंड ऑफ फ्रिक्शंस, राइट. सो ये जो इफेक्ट जिसके ऊपर तुम्हारा इट विल अफेक्ट दिस रफनेस विल अफेक्ट द डिस्चार्ज और फ्लो, दैट इज डिफाइंड बाय द कोफिशिएंट ऑफ रुगोसिटी, ओके. सो क्या है? द रफनेस ऑफ द कैनल बेड्स अफेक्ट्स द वेलोसिटी. ऑब्वियसली ज्यादा रफनेस होगा तो क्या होगा? उसको रेजिस्टेंस में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, राइट. एक पानी भेज रहे हो, एक स्मूथ सरफेस से पानी को फ्लो करो, एक ऐसे उबड़ खाबड़ सरफेस से पानी को फ्लो करो, राइट. तो क्या होगा? ऑब्वियसली जो स्मूथ में है वो स्मूथली जाएगा, वेयरएज इस टाइप में क्या आ जाएगा? उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा, राइट. सो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये रफनेस फैक्टर है, ठीक है. सो ये वाला टर्म इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ओके. और एंड द वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द, ये जो मटेरियल है सॉइल मटेरियल उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था? दूसरा इंपॉर्टेंट तुम्हारा टर्म था, इट इज मीन वेलोसिटी व्हाइल डिटरमाइनिंग स्ट्रीम फ्लो, ओके. जहाँ पे हम लोग पढ़े थे स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, वहाँ पे मीन वेलोसिटी हम लोग बार बार पढ़े थे. कैन यू प्लीज टेल मी, कोई भी एक स्ट्रीम से जो भी फ्लो जाता है उसका मीन वेलोसिटी हम कितने डेप्थ में बोल पाएंगे? मैम 0.8. 0.8 from the surface, from the bed level कितना डिस्टेंस होना चाहिए? दो केस था, ठीक है. अगर बहुत डेप्थ मतलब डीपर वाला अगर स्ट्रीम होता है तो उसमें होगा तुम्हारा 0.2 और 0.8 का एवरेज, ठीक है, 0.8 और 0.2 का एवरेज. लेकिन सैलो में हो जाएगा तुम्हारा क्या? 0.6 ऑफ द डेप्थ, ओके, फ्रॉम द बेड लेवल. तो इसमें जाके अगर हम अपना स्ट्रीम फ्लो वेलोसिटी किस चीज से मेजर करते हैं? व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग दिस वेलोसिटी, स्ट्रीम फ्लो वेलोसिटी? Current meter. यस, करंट मीटर, वेरी गुड. तो करंट मीटर को हम एक डेप्थ में, कितना डेप्थ में रख देंगे? 0.6 फ्रॉम द, यहाँ से वहां से वेलोसिटी हम लोग काउंट करेंगे, राइट. मतलब वी विल गेट द वेलोसिटी, सो दैट इज द मीन वेलोसिटी. अब ये तो हुआ तुम लोग फिजिकली कर रहे हो, राइट. बट अपार्ट फ्रॉम देयर दे हैव डेराइव्ड मेनी फॉर्मूलाज कि ये वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे विदाउट गोइंग टू द फील्ड, राइट. मतलब उसमें करंट मीटर यूज नहीं करके भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दीज आर द फॉर्मूलाज. मेनली यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 3 टाइप का फॉर्मूला होगा. एक है कटर्स इक्वेशंस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कटर्स कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं. एक है चेजिस इक्वेशन, सी दिस v, ठीक है, यहाँ पे c चेजी कांस्टेंट यूज कर रहे हैं. एंड अनदर इज मैनिंग्स इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मैनिंग्स कोफिशिएंट यूज करके वो डिराइव कर रहे हैं, राइट. सो मेनली 3 है, कटर्स, चेजिस एंड मैनिंग. अभी नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ने वाले कैनेडी थ्योरी में दे हैव यूज्ड कटर्स इक्वेशन, ओके. ये दोनों यूज नहीं किया, दे हैव यूज्ड कटर्स इक्वेशन. वो हम लोग दिखा देंगे कि कैसा है फॉर्मूला, ओके.
नाउ क्रिटिकल वेलोसिटी, देखो ये क्रिटिकल वेलोसिटी बार बार हम बोल रहे हैं, थोड़ा आइडिया यहाँ पर ही दे देते हैं, बट वहां पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस इट इन ब्रीफली। ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी उसी को बोलते हैं। देखो कोई भी अगर एक ऐसा तुम्हारा क्रॉस सेक्शन है, कैनल है, जिस कैनल क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो क्या होता है कि एक अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर जो भी यहाँ से फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है? एनी आइडिया? सी अगेन रिमेंबर दैट दिस इज व्हाट, दिस इज योर अनलाइंड कैनल, तो ये वाला होगा सॉइल पार्टिकल से यहाँ पे है पूरा, ठीक है, तो अगर वेरी हाई वेलोसिटी से अगर फ्लो होगा तो क्या होगा? मैम वॉश आउट করতে হবে, यस, ক্ষয় হবে বলে। इरोशन, हाँ, स्कोरिंग, राइट, ज्यादा होने से स्कोरिंग होगा, ठीक है, तो स्कोरिंग अगर हो गया तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली योर डेप्थ विल बी रिड्यूस्ड। ओके, मतलब क्या हो जाएगा? स्कोरिंग होने से क्या है, ये पूरा इसका क्या होता है, इसका तुम्हारा क्रॉस सेक्शन इट विल बिकम वाइडर, राइट, तो उससे क्या हो जाएगा तुम्हारा डेप्थ अगेन इट विल स्टार्ट टू रिड्यूस, तो डेप्थ रिड्यूस होगा तो क्या होगा? जितना अगर इतना डेप्थ से तुम जितना फील्ड को इरिगेट कर पा रहे थे, तो कम डेप्थ से क्या होगा? कम कमांड एरिया होगा ना कि ज्यादा कमांड एरिया होगा? कौन से केस में तुम्हारा ज्यादा कमांड एरिया होगा? व्हेन द डेप्थ इज हायर, इफेक्टिव डेप्थ इज हायर, और इट इज लेसर? इफेक्टिव डेप्थ अगर ज्यादा है तो हम लोग को ज्यादा एरिया में हम पानी सप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि हेड ज्यादा होगा, हेड डिफरेंस ज्यादा होगा, राइट। अब जैसे ये इफेक्टिव डेप्थ, इसका वाटर लेवल नीचे नीचे जाएगा स्कोरिंग की वजह से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली इसका इफेक्टिव डेप्थ या हेड ऑफ द फ्लो जो भी है वो कम हो जाएगा, तो इससे ज्यादा एरिया में पानी हम इरिगेट सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली कमांड एरिया विल बी रिड्यूस, ठीक है, तो ये भी हमको नहीं चाहिए। ओके, अब स्पीड बहुत कम है तो फिर क्या होगा? ये तो हुआ स्पीड ज्यादा की वजह से। नाउ इफ योर स्पीड इज वेरी लेस, देन व्हाट हैपेंस? मैम सिल डिपॉजिट हो जाएगा। यस, देखो यहाँ पे तो इट इज नॉट प्योर वाटर, राइट, ये तो एकदम डिस्टिल वाटर वाला पूरा प्यूरिफाई करने वाला तो वाटर नहीं है, ये तो नेचुरली फ्लो हो रहा है, राइट, तो आसपास से जो भी मटेरियल्स है वो तो निकल के आएगा बिकॉज ऑफ दी रफ जो भी वेलोसिटी के फ्रिक्शन की वजह से, ये आसपास में जो भी पार्टिकल्स है इट विल स्कोर आउट, ठीक है। अब ये स्कोर होकर होकर जाएगा, तो सपोज यहाँ से पार्टिकल्स है, बहुत सारा पार्टिकल्स है, और यहाँ पे तुम्हारा फ्लो धीरे से जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? पार्टिकल्स हैव देयर वेट, and now due to weight and specific gravity, due to weight and gravity what happens? They will start to settle down, तो ऐसे करके बहुत सारा पार्टिकल सेटल होते होते जाएगा, तो अल्टीमेटली अगेन योर डेप्थ विल बी अफेक्टेड। अब डेप्थ इफेक्ट होगा तो फिर से कमांड एरिया विल बी अफेक्टेड। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू देन? हमको ज्यादा वेलोसिटी भी नहीं चाहिए, हमको कम वेलोसिटी भी नहीं चाहिए, तो एक ऑप्टिमम वेलोसिटी यहाँ पे रखना है, विच इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी। ऐसा वेलोसिटी यहाँ से पास होना चाहिए, शुड बी वेलोसिटी विल बी सच दैट इट विल क्रिएट नो स्कोरिंग एंड नो सिल्टिंग। ओके, नो स्कोरिंग या नो सिल्टिंग, या बोल सकते हैं नो इरोशन या नो सेडिमेंटेशन, ठीक है, यही होना चाहिए। दैट वेलोसिटी इज नोन एज द क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, तो हमको ऐसा डिजाइन करना है कि इससे जो भी फ्लो होगा वो क्रिटिकल वेलोसिटी अचीव कर पाए। ओके, तो और इसके लिए जो कैनेडीज ने इक्वेशन दिया है, दिस इज दिस वन। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन विच ही हैज डिराइव्ड, लेकिन इसको फिर से मॉडिफाई भी किया है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, वेयर V0 is the critical velocity, D is the depth of the water, and see here he has defined that velocity is it is dependent upon the depth. Okay, ये depth vary करने से critical velocity भी vary करता है, ये दिखाया गया है। Okay, we will see now। अब एक है क्रिटिकल वेलोसिटी, एक है मीन वेलोसिटी, दोनों का रेशियो जो आता है इट इज CVR, विच इज क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। देखो ये स्मॉल m से डिनोट किया है, ठीक है। MCQs दे में आस्क इफ m इज इक्वल्स टू 1 देन योर मीन वेलोसिटी, मतलब जो एक्चुअली में वेलोसिटी वहां से फ्लो हो रहा है, दैट विल बी इक्वल टू, ये m इक्वल्स टू 1 कब होगा? जब ये दोनों इक्वल होगा, राइट। So if m equals to 1, your this velocity must be equal to V0,
मतलब क्या है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब जो भी फ्लो हो रहा है मीन वेलोसिटी, इफ इट इज रीचेस क्रिटिकल वेलोसिटी, देन वहां पे कोई सिल्टिंग भी नहीं होगा, कोई स्कोरिंग भी नहीं होगा। ओके, अब जैसे अगर तुम्हारा m इज ग्रेटर देन 1, क्या होगा बोलो? If your m is greater than 1, then what happens? Your mean velocity is greater than critical velocity. मतलब critical velocity कहाँ पे? जहाँ पे कोई scoring और silting नहीं होगा। अब velocity उससे ज्यादा आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ज्यादा speed से आ रहा है, मतलब वही scoring will occur, it will erosion will occur, मतलब पूरा जो सराउंडिंग का सरफेस में जो भी पार्टिकल्स है उसको वो मतलब इरोड करके चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इफ m इज लेस देन 1, क्या हो जाएगा? डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ रिजैम चैनल क्या है? रिजैम चैनल वही है जहां पे कोई सिल्टिंग भी नहीं हो रहा है, कोई स्कोरिंग भी नहीं हो रहा है, जहां पे तुम्हारा डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, जहां पे तुम्हारा एरिया, पेरीमीटर, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड रिजैम चैनल। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। ओके, तो उसी को बोलते हैं रिजैम चैनल, स्टेबल चैनल जिसको बोलते हैं। ओके, तो ये भी सुना मतलब पढ़ने में आएगा बाद में। ओके, मतलब all these are what? These are the terminologies which you should go through, okay, before starting other lecture. See, hydraulic mean depth, ये भी कैलकुलेट करना है। अल्टीमेटली व्हाट वी आर डीलिंग विद, वी आर डीलिंग विद द डिजाइन। तो डिजाइन मतलब देखो अब धीरे धीरे ये सब आ रहा है, मतलब एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, ये सब टर्म्स आएगा। ठीक है, सो एक टर्मिनोलॉजी आएगा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का है फॉर्मूला क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो भी तुम्हारा कैनल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जो वाटर लेवल तक का क्रॉस सेक्शनल, नॉट द टोटल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जैसे कि ये वाला अगर बोलेगा तो ठीक है, तो ये जो ब्लू पोर्शन है दैट इज योर ए, और इसका ये पूरा पोर्शन अगर हम करेंगे, एक्चुअली कैनल का पूरा एरिया कितना, इतना है, लेकिन पूरा तो पानी नहीं जाएगा, एक लेवल तक जाएगा। ठीक है, और दिस इज द मैक्सिमम लेवल, कहाँ तक जा सकता है? फ्लड सप्लाई लेवल, अगर फ्लड आया तो। ठीक है, एंड ये वाला है तुम्हारा जो प्रैक्टिकली इतना लेवल मेंटेन करके जाता है। सो दिस ब्लू एरिया इज द ए, ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नॉट द होल एरिया। एंड पेरीमीटर कौन सा है? वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर का मतलब है कि जितना तुम्हारा सरफेस ऑफ द कैनल इज अंडर वाटर, उसका टोटल लेंथ ऐड कर दो, दैट डिस्टेंस ऐड कर दो, वी विल गेट, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक। पेरीमीटर होने से क्या बोलते हैं हम? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या टोटल ये जो लाइन को ऐड कर दोगे, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। लेकिन हम लोग वेटेड पेरीमीटर बोले, मतलब विच पेरीमीटर विच इज वेट। वेट कहाँ से? यहाँ से, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ओके, तो ऐसे तुम लोग का वेटेड पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो अगर ये आ गया, पी आ गया, देन वी विल गेट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ओके, तो दिस इज ए फ्लड लेवल, सप्लाई लेवल एंड इकोनॉमिक सेक्शन। हम बोले थे देखो कई बार तुम्हारा एम्बैंकमेंट भी साइड में रहता है और ये कटिंग है फॉर द कैनल। ऐसा सेक्शन विल बी सेड टू बी इकोनॉमिकल व्हेन यहाँ से जितना अर्थ मटेरियल एक्सट्रैक्ट हुआ है कटिंग एरिया से, यहाँ से, दैट वी आर यूजिंग फॉर फिलिंग द एम्बैंकमेंट। ठीक है, देन दैट डेप्थ, उस हिसाब से जो डेप्थ हम लोग डिजाइन किए हैं, दैट इज नोन एज द इकोनॉमिकल डेप्थ, and the cross section area which we have come up, we have derived is the economical section. ओके, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल सेक्शन। तो ये सब इन ब्रीफ में हम लोग मतलब शॉर्टली हम लोग समझा दिए। नाउ लेट अस गो टू द मेन लेक्चर। ओके, दिस इज आवर लेक्चर। सी, कैनेडीज थ्योरी ऑफ कैनल डिजाइन। ठीक है, ये है अनलाइन कैनल, जो देखो इस तरफ में ग्रीनरी, मतलब कोई तुम्हारा सीमेंट या मतलब लाइनिंग नहीं है। ओके, अनलाइंड है, नेचुरली है, एंड इट इज ऑन द एलुवियल सॉइल। तो इसीलिए कैनेडीज थ्योरी ऑफ कैनल डिजाइन। अब कैनल कौन सा है? अनलाइन कैनल ऑन एलुवियल सॉइल। ओके, तो व्हाट वी विल लर्न, क्या क्या टाइप का कैनल है, फिर एज आई सेड सी स्टेबल एंड रिजाइम चैनल क्या है, फिर वी विल डिस्कस द कैनेडी थ्योरी। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी आ रहा है, ये जो फॉर्मूला हम बोले थे, इट हैज डिराइव्ड सम फॉर्मूला। ओके, एंड दिस सीवीआर एम का रिलेशन, वो थोड़ा हम डिस्कस कर दिए हैं। लास्टली वी विल सी द डिजाइन स्टेप्स। दो टाइप का केस होता है, तो उसके लिए डिजाइन स्टेप्स क्या क्या है। ओके, नाउ कैनेडीज थ्योरी कॉन्सेप्ट, ये जो किया है उनका नाम क्या है? आरजे कैनेडी। इन दिस ईयर ही हैज मतलब उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट वो किया, इन्वेंट किया। ठीक है, regarding this design, and mainly this design is used for Indian online canal only। मतलब ये
वेस्टर्न कंट्रीज के लिए नॉट एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर इंडियन कंडीशन, मतलब जो भी इंडिया में जितना भी कैनल्स है, और उसी के ऊपर ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया है। ओके, एक कैनल सेक्शन जो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ही हैज डिराइव्ड द फॉर्मूलाज। ओके, तो वो भी इंडिया में ही है। ओके, नाउ एज आई सेड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैनल, लाइन्ड एंड अनलाइन्ड। ठीक है, सॉरी, अनलाइन्ड एंड लाइन। अनलाइन में तो ये तुम्हारा पूरा यहाँ पे इट हैज अ टेंडेंसी कि वेलोसिटी अगर ज्यादा आएगा तो इरोड होने का चांसेस है। ठीक है, कम हुआ तो ये डिपोजिशन होने का भी चांस है। लेकिन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस व्हाट वी आर डूइंग एंड आल्सो देयर विल बी सम सीपेज लॉस। ऐसे कैनल में देयर विल बी सम सीपेज लॉस। ठीक है, इसी को मॉडिफाई करके बाद में क्या आया, इन लोगों ने लाइनिंग कर दिया। ओके, सो दैट इज फॉर लाइन कैनल। तो इसका भी डिजाइन अलग है। ओके, एंड मेनली हम लोग जो भी कैनल डिजाइन कर रहे हैं इट इज ट्रेपेजॉइडल इन सेक्शन। ओके, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ट्रेपेजॉइडल, वेटेड पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। ओके, ये सब तुम लोग को फॉर्मूलाज यू कैन डिराइव आल्सो, और एक फॉर्मूला आएगा वो हम दे देंगे। ठीक है, एंड यू हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट इन आवर क्वांटिटी सर्वे एस्टिमेशन क्लास। ओके, अच्छा तो So what we were discussing, हाँ. Now what happens in unlined canal? As I said, erosion हो सकता है. ठीक है, water will score the surface. Obviously ज्यादा स्पीड में आएगा तो होगा. Sedimentation भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि जो वाटर स्कोर करके लेकर आ रहा है, यहाँ पे अनलाइन कैनल है, मतलब क्या, यहाँ पे पार्टिकल्स टूट टूट के ऑलरेडी इट इज डिजोल्व विद दिस, मतलब कैरी कर रहा है ये पानी के अंदर, ये पार्टिकल्स जो भी स्कोर होके आ रहा है, they are carrying that particles along with them. Okay, this water, then what happens if your flow will start to reduce, इसका velocity अगर slow हो जाएगा तो हम बोले थे इसके अंदर जो भी particles है what happens, they will tend to deposit in the bed level में जाके वो deposit होना start करेगा. So वहाँ पे ultimately sedimentation होने का भी chances है, chances नहीं होगा ही. ठीक है, तो ये दो केस हो सकता है. So in order to prevent these two things along with the seepage, we are constructing lined canal. Okay, मतलब वो हम लाइन कर दे रहे हैं जिससे कि पानी फ्लो होगा तो यहाँ पे माटी के साथ, सरफेस के साथ तो कांटेक्ट ही नहीं है, so water soil particles will not erode and they will not flow along with the water, right? So sedimentation भी नहीं होगा और erosion होने का भी चांस नहीं है. Now disadvantage क्या है? As I already discussed that disadvantage क्या है, अगर ज्यादा scoring हो जाएगा then what happens, excessive storing your bed will erode. Okay, बेड लेवल अगर इरोड होगा तो क्या हो जाएगा, सपोज दिस वाज योर कैनल. ठीक है, अब ये एक्सेसिव स्कोरिंग के लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है विद द वेलोसिटी दे विल स्टार्ट टू इरोड. ओके, मतलब ये स्कोर होना स्टार्ट करेगा. देन व्हाट हैपेंस, स्लोली तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये क्रॉस सेक्शन भी चौड़ा चौड़ा होता जाएगा क्योंकि ये पूरा एक्सपैंड होता जाएगा ऐसा. ठीक है, एक्सपैंड होता जाएगा. तो एक्सपैंड होने से क्या हो रहा है, देखो पानी का तो डिस्चार्ज तो एक ही है, ऊपर से जो भी पानी तुम फेंक रहे हो, मतलब डिस्चार्ज में ला रहे हो, तो अल्टीमेटली वही पानी यहाँ से जाएगा. जितना डिजाइन डिस्चार्ज तुम इसके थ्रू फ्लो कर रहे हो वही फ्लो होएगा, राइट? पानी इज कांस्टेंट. देन व्हाट हैपेंस, योर वाटर लेवल पहले यहाँ पे था, अब ये देखो स्लोली इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज. ठीक है, तो पहले वाटर लेवल यहाँ पे था, अब करते करते यहाँ पे पहुंच गया बिकॉज ऑफ द स्कोरिंग. सो वाटर लेवल अगर कम हो जाएगा देन व्हाट हैपेंस, तो वाटर लेवल कम होने से क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगेन एज आई सेड कमांड विल बी लेस. ठीक है, मतलब कि एक वाटर लेवल था यहाँ तक तुम्हारा पानी का. ठीक है, तो इससे जितना एरिया को ये पानी दे सकता था, जितना एरिया सराउंडिंग करके, ठीक है, अब ये वाटर लेवल कम हो गया तो ऑब्वियसली इसका हेड भी कम हो गया. तो हेड कम हो गया तो वो ज्यादा दूर तक फ्लो नहीं होगा, राइट? सो इट विल गिव लेस, इट विल इरिगेट लेस कमांड एरिया. ठीक है, सो इसीलिए ये कमांड एरिया भी घटता जाएगा. ओके, अगर एक्सेसिव सेडिमेंटेशन भी हुआ तो, मतलब सिल्टिंग अगर एक्सेसिव हुआ तो अगेन क्या हो जाएगा, तुम्हारा
बेड लेवल थोड़ा थोड़ा घटना मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे जमता जा रहा है तो बेड लेवल भी उठता जा रहा है, तो उसकी वजह से तुम्हारा वाटर सरफेस क्या हो जा रहा है, वो भी डेप्थ भी कम होता होता जाएगा, ठीक है। तो अगेन योर कैपेसिटी विल रिड्यूस, सो वी मस्ट, तो इस ये सब नहीं होना चाहिए, राइट। सो तो यहाँ पे यही कंसेप्ट इन्होंने यूज किया है। व्हाट इज दैट कंसेप्ट? कंसेप्ट इज दैट दे मस्ट बैलेंस ईच अदर। अगर ऐसा होगा भी तो बैलेंस वे में होना चाहिए, ओके। आइदर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, नो सिल्टिंग, नो सेडिमेंटेशन, नो इरोशन होना चाहिए, या दे मस्ट बैलेंस ईच अदर, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है कैनेडिस थ्योरी का। नाउ उस हिसाब से हम लोगों ने रिजाइन चैनल बोल दिया था, जहां पे द चैनल और द सेक्शन वेयर नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग ऑकर्स, ओके। तो मतलब क्या है कि जो भी पार्टिकल्स सॉल्ट मतलब उस कैनल के अंदर है, सॉल्ट पार्टिकल्स जो भी इरोड होके आ रहा है, वही क्या हो जाएगा, इट शुड बी कैरीड, मतलब वो हमेशा दैट पार्टिकल शुड ऑलवेज शुड बी इन सस्पेंशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सपोज ओके मार्क करने से अच्छा, ठीक है। सपोज दिस इज योर रिवर बेड, ओके, एंड दिस इज योर वाटर सरफेस, ठीक है। तो हमको ऐसा मेंटेन करके रखना है जहां पे या वेलोसिटी शुड बी सच दैट कि जो भी पार्टिकल्स यहाँ से इरोड होके निकल रहा है ड्यू टू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के फोर्स से आएगा, धक्का देगा, इरोड करके ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ऐसा होना चाहिए कि यही पार्टिकल फिर से ड्यू टू इट्स वेट फिर से ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अगेन ड्यू टू इट्स वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो करते करते क्या हो रहा है, देखो, इट इज नाइदर डिपोजिटिंग नॉर इट इज क्या बोलते हैं, जो भी स्कोर हो रहा है वही फिर से डिपोजिट होके फिर से स्कोर हो रहा है, राइट। मतलब कि इट इज इन सस्पेंशन, ये मतलब ये रुका नहीं है, इट इज इन सस्पेंशन, राइट, इट इज नॉट इन स्टिल कंडीशन। सो this is the funda of the critical velocity, okay, which he has explained. So suppose this was your particles जो flow होके already which was present in the water, okay, ऐसे flow हो रहा है, तब velocity आ रहा है बहुत कम। हम बोले थे अगर velocity बहुत कम होगा तो क्या होगा, ये particles क्या होगा velocity कम होने से, हेलो, डिपॉजिट हो जाए मैम। यस, सो इट विल सेटल डाउन, ओके। अब सिमिलरली अगर ऐसा ही पार्टिकल्स जो भी यहाँ के नीचे रिवर बेड में है, अगर वेरी हाई वेलोसिटी से आया तो क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट्स भी रहेगा, इट विल इरोड एंड इट विल टेक इट टू द अपर लेवल, ओके। सो ये केस होता है तुम्हारा अगर वेलोसिटी हम लोग सही से मेंटेन नहीं करेंगे। तो इन्होंने बोला है कि स्टेबल कंडीशन में वेलोसिटी शुड बी नाइदर लेस नॉट टू मच हाई, इट शुड बी इन ऑप्टिमम विच इज क्रिटिकल। तो उस सेक्शन में जहां पे क्रिटिकल वेलोसिटी रहता है, जहां पे नो सोरिंग नो सिल्टिंग होता है, दैट इज योर रिजाइम चैनल। तो ये सब अगर होगा तो तुम लोग का क्या हो जा रहा है, क्रॉस सेक्शन भी वैरी नहीं कर रहा है, ठीक है, डिस्चार्ज भी वैरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए दैट इज कॉल्ड द स्टेबल चैनल, ओके। नाउ अबाउट द कैनेडीज थ्योरी, ये कैनेडी ने कैसे किया, ठीक है। फर्स्ट ही डिड सम एक्सपेरिमेंट्स, कहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, ही एक्सपेरिमेंटेड इन अ बारी दोआब कैनल, ठीक है, ये वहाँ एक कैनल है इंडिया में जहाँ पे ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एंड विच सेक्शन ही चूज सच सेक्शन, मतलब रिजाइम चैनल उन्होंने चूज किया। रिजाइम चैनल मतलब क्या है, नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग, ओके। अब कितना साल के लिए वैसा कंडीशन था, पर 30 इयर्स, मतलब 30 इयर्स का डाटा देखकर देख रहे हैं कि उस जगह का क्रॉस सेक्शन पेरीमीटर एज इट इज ही था, ठीक है, देयर इज नो चेंज, मतलब कि वहां पे कोई सिल्टिंग नहीं हुआ, कोई स्कोरिंग नहीं हुआ, ठीक है। सो ऐसा सेक्शंस उन्होंने लिया, उस पे ऊपर ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट, ओके। सो उन्होंने यहाँ पे एक और टर्म यूज किया है, दैट इज द एडी करंट, ओके, फॉर्मेशन ऑफ दिस एडी। एडी मींस व्हाट, दिस आर द swirling फोर्स, दिस इज कॉल्ड द swirling फोर्स, ओके। ऐसे स्वर करके जाएगा, एक हाई स्पीड से आ रहा है इस तरफ से फ्लो वाटर, इसका कुछ कंपोनेंट धक्का देगा, तो धक्का देने से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक जैसे तुम लोग वॉशिंग मशीन के अंदर देखते हो व्हर्लपूल टाइप में, वैसे यहाँ पे भी वैसा एक
मतलब एडी फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल एडीज. ओके, नाउ ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ द वर्टिकल एडीज व्हाट हैपेंस, द सॉइल पार्टिकल्स, ये वर्टिकली अप की तरफ जा रहा है, राइट, सोलिंग मोशन में अप की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से जो भी पार्टिकल्स है इट विल आल्सो गो अप. ओके, सो इन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है कि ये वेलोसिटी की वजह से एक कंपोनेंट से वेलोसिटी का दिस कंपोनेंट विल क्रिएट सम एडी करंट व्हिच इज वर्टिकली गोज अप, अलोंग विथ इट द पार्टिकल्स जो भी है बेड में वो भी ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा. ओके, तो उन्होंने ये फंडा दिया है. Now this eddy current will help the silt to be in suspension. Because of this eddy current only हमको चाहिए ये पार्टिकल शुड नॉट आइदर डिपॉजिट होना चाहिए, ठीक है, या ऐसा भी नहीं है कि पूरा स्कोर होके चला जाना चाहिए. जितना भी यहाँ पे प्रेजेंट है इसमें एग्रीगेट्स सिल्ट प्रेजेंट है विद इन द वाटर बॉडी, इट शुड बी ऑलवेज इन सस्पेंशन. ठीक है, तो उसको कौन मेंटेन करता है, ये एडी करंट ही मेंटेन करता है. हाउ, वी विल सी वाया डायग्राम. ओके, तो बोला है द वेलोसिटी ऑफ द चैनल शुड बी सच दैट दे शुड प्रोड्यूस दिस एडी करंट. तो ऐसा वेलोसिटी होना चाहिए कि ये हाई नहीं होगा. ओके, दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी. ऐसा वेलोसिटी होना चाहिए कि दे विल प्रोड्यूस एडी करंट. ओके, एंड दैट वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके, and your velocity should either be equal to your critical velocity और उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, in order to create this eddy current. okay, अब इसका फंडा कैसा करता है, कैसे ये सस्पेंशन में रहता है पार्टिकल्स. ओके, सपोज दिस इज योर रिवर बेड, दिस इज योर वाटर सरफेस एंड दिस इज द फ्लो ऑफ द रिवर. ओके, तो क्या हो रहा है, यहाँ से एक वेलोसिटी आ रहा है, देन व्हाट हैपेंस, एडी करंट जनरेट हो रहा है. इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे धक्का देगा तो क्या होगा, एडी करंट जनरेट होगा. तो उसकी वजह से जो भी पार्टिकल्स है वो भी अब अपवर्ड तरफ मूव कर रहा है. फ्लो इस तरफ में भी हो रहा है, इस तरफ से भी फ्लो हो रहा है, कंपोनेंट यहाँ पे भी है वेलोसिटी का, ठीक है, और एडी करंट ऊपर भी इसको शिफ्ट कर रहा है. तो दे विल मूव अहेड एंड एज वेल एज दे विल मूव अबव. ओके, अब यही पार्टिकल्स क्या हो रहा है कि इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, इसका बिकॉज ऑफ दिस एडी करंट दे आर गेटिंग अप थ्रस्ट, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन स्लोली क्या हो जा रहा है, ड्यू टू इट्स वेट, तो नीचे की तरफ आने का फिर से कोशिश करेगा. तो ये क्या हो रहा है, फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ड्यू टू इट्स वेट. फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ से यहाँ पे भी तो फ्लो हो रहा है, तो फिर से स्वॉल्डिंग इफेक्ट होगा, ठीक है, तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, सिल्क विल गो अप एंड बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ इट्स वेट इट विल अगेन गेट सेटल्ड डाउन, ट्राई टू गो डाउन, इट विल नॉट सेटल. देखो यहाँ पे ये सेटल नहीं है. ओके, दे आर जस्ट मूविंग अप एंड डाउन, ऐसे अप एंड डाउन हो रहा है. ओके, देखो ऐसे अप एंड डाउन होता जा रहा है, तो मतलब क्या है, दे आर इन सस्पेंशन, दे आर नाइदर सिल्टिंग नॉट दे आर स्कोरिंग. ठीक है, जो भी पार्टिकल्स ये इसके अंदर प्रेजेंट था ऑलरेडी, दोज आर नाइदर सिल्टिंग नॉट दे आर स्कोरिंग. ओके, तो वही अप एंड डाउन होता जा रहा है. यही है तुम्हारा कैनेडिस थ्योरी का फंडा. बिकॉज ऑफ दिस एडी करंट ओनली दे आर शिफ्टिंग अपवर्ड, and obviously with the weight they will go down again due to eddy current, with the help of eddy current they will go up, so they are in suspension. Okay, I think clear this one everyone. बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं हम. ओके, सी एम्पिरिकल फॉर्मूला. अब ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी हम क्या बोले थे, क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी व्हिच इट विल प्रोड्यूस दिस कंडीशन, नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग. ये याद रखना है. और ये वाला कब होता है, when your as per this Kennedy's theory this condition occurs when it the velocity will generate eddy current, तभी होता है. ठीक है, तो based on the several experiment जो दोआब में उन्होंने किया, बारी दोआब में किया एक्सपेरिमेंट, ठीक है, so he found derived one formula. So this is the formula. Okay, this is what critical velocity is 0.546 d into 0.64. Please remember this formula. इसका derivation नहीं आएगा, only formula because it is empirical. ओके, तो बोला है अगेन सी द वेलोसिटी इट इज डिपेंडेंट ऑन द डेप्थ. ओके, अब व्हाई डेप्थ, बिकॉज देखो एडी करंट इट मे ऑकर फ्रॉम द सरफेस आल्सो, राइट. यहाँ से भी ये एडी करंट हो सकता था, लेकिन ही हैज कंसीडर्ड ओनली दैट एडी करंट विल ओनली बी जनरेटेड फ्रॉम द बॉटम, मतलब फ्रॉम द बेड लेवल ओनली, मतलब कि डेप्थ के हिसाब से भी ये चेंज होगा वेलोसिटी, राइट. इसके हिसाब से एडी करंट भी चेंज हो रहा है. सो this he has assumed that these eddy currents are generated only from the bed, okay, not from the surface surrounding. ये वाला से नहीं होगा. so this is again disadvantage. okay, यही disadvantage को consider करके Lacy theory has been derived. okay, वो बाद में आएंगे. तो
बोला गया है Kennedy related this V only with the depth, okay, and ignored the eddies from the banks, okay. So this is one drawback of this formula. Again, तो क्या बोला है, और एक ड्रॉबैक क्या है कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से एक्सपेरिमेंट, कहाँ किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, in which canal he did experiments and derived this formula, Baridov, okay. तो ये वाला फॉर्मूला दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू दैट कैनल सेक्शन, ठीक है, सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल है, तो बाकी लोग के लिए क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा, जो अपार्ट फ्रॉम दिस कैनल बारिदोव देयर आर सेवरल अदर कैनल्स, तो वहां पे अगर तुम ये फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करोगे यू विल नॉट गेट द क्रिटिकल वेलोसिटी, राइट, मतलब एग्जैक्ट क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर, व्हाई, बिकॉज साइज एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द सिल्ट में वैरी फ्रॉम कैनल टू कैनल, मतलब एक ही कैनल में एक ही टाइप का पार्टिकल्स का साइज या कैप, मतलब उसका जो भी प्रॉपर्टी है इट विल नॉट रिमेन सेम, इट विल वेरी, सो ऑब्वियसली योर तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसका जो मतलब जितना ऊपर जा रहा है, जो वेट की वजह से नीचे आ रहा है, दैट विल वेरी, राइट, तो उस हिसाब से वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी कितना होना चाहिए वो भी वेरी करेगा, तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके करेंगे देन इट वोंट बी गुड, ओके, वो सही रिजल्ट नहीं देगा. देन व्हाट ही डिड, सो ही केम अप विद द जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला क्या किया, एक m टर्म यूज कर दिया, जो भी था उसमें m टर्म यूज कर दिया. नाउ दिस m इज योर क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, ओके, CVR, एंड इट लाइज बिटवीन 0.7 to 1.2, ठीक है. CVR का मतलब क्या है, वेलोसिटी रेशियो है, राइट, वेलोसिटी रेशियो मतलब ये दो वेलोसिटी का रेशियो है. अब किस किस चीज का वेलोसिटी रेशियो है, v by v, v मीन बाय v क्रिटिकल का रेशियो है, ओके. नाउ बोला है कि फॉर बारिदोव कैनल, बिकॉज ही हैज डिराइव्ड दिस इक्वेशन फॉर बारिदोव के लिए क्या था, बारिदोव में ये m नहीं था, नाउ m नहीं था मतलब m का वैल्यू क्या है 1 है, लेकिन अदर कैनल्स में क्या हो जाएगा, अदर कैनल में इट विल वेरी फ्रॉम 0.7 to 1.2, ठीक है. नाउ अगर बाकी कैनल्स, सपोज बारिदोव में एक कैनल हुआ और कोई यहाँ का मतलब कोई भी एक कैनल ले लो, ठीक है, अगर वहां पे तुम्हारा फाइन पार्टिकल्स रहेगा, अगर वहां पे जो पार्टिकल्स ये जो उठ रहा है फिर गिर रहा है, अगर वो पार्टिकल्स आर फाइनर देन दैट ऑफ द बारिदोव, व्हाट हैपेंस, हियर m विल बी लेसर देन 1, व्हाई, वेयरएज अगर कोर्सर होगा, ठीक है, मतलब और मोटा मोटा एग्रीगेट्स होगा कंपेयर टू द बारिदोव, बारिदोव में जो पार्टिकल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने वो फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है, तो कंपेयर करने से देखेंगे कि यहाँ का कैनल में जो पार्टिकल्स है दैट इज मच कोर्सर देन द बारिदोव कैनल्स, ओके. देन एट दैट टाइम इट इज सेड दैट m इज ग्रेटर देन 1, व्हाई, अच्छा क्यों हो रहा है, बिकॉज CVR या m इट इंक्रीजेस विथ कोर्सनेस ऑफ द सिल्क, जैसा जैसा जितना कोर्स होता जाएगा एग्रीगेट्स, सॉरी जितना कोर्स होता जाएगा वो सिल्क पार्टिकल्स मतलब बड़ा बड़ा साइज का होता जाएगा, उसका डायमीटर keep on increasing, your m will also increase. क्यों, क्योंकि देखो कोर्सर सिल्क मतलब क्या है, इट इज मोर वेट, या कोर्सर सिल्क मतलब उसका और वेट है कम, राइट, मोर वेट मतलब क्या है, इट विल नीड मोर एडी फोर्स, राइट, ये जो उठ रहा है मतलब पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उठ रहा है, कौन उठा रहा है उसको, एडी करंट उठा रहा है, तो जितना भारी पार्टिकल्स होगा उतना ही ज्यादा हमको एडी फोर्स लगेगा, राइट, so needs more eddy force to lift up those particles. अब ये एडी करंट मोर जनरेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, वी हैव टू इंक्रीज द स्पीड, मतलब जो भी फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी शुड बी मोर, ठीक है, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट कैनल शुड बी एवरेज मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन दैट कैनल शुड बी मोर, ठीक है. अब मोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्रिटिकल वेलोसिटी से और ज्यादा वो होने का चांस रह सकता है, राइट, क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर भी वो मीन वेलोसिटी में गो, v में be greater than v critical, अगर v is greater than v critical, we know that m is what, m is the ratio of v by v naught, average depth, average velocity by critical velocity, अगर ये ज्यादा है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, obviously your m will be greater than 1. ये क्लियर है, ये वाला टर्म कैसे आया, यहाँ से यहाँ का कनेक्शन, एवरीवन, हेलो, है मैम. सी कोर्सर मतलब ज्यादा वेट मतलब उसको और ज्यादा फोर्स से उठाना पड़ेगा, कौन उठा रहा है, एडी करंट को ज्यादा फोर्स से उठा मतलब मोर एडी करंट लाने के लिए स्पीड शुड बी मोर, वेलोसिटी से तो क्रिएट हो रहा है, राइट, एडी करंट, तो स्पीड ज्यादा होने से तुम्हारा क्या मतलब एवरेज स्पीड ज्यादा होना चाहिए, एवरेज स्पीड ज्यादा मतलब क्रिटिकल से वो ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा,
तो v will be greater than v naught, मतलब ultimately your m will be greater than 1. Okay, so this is the ये फंडा यहाँ से आया है, y it is less than 1, y it is greater than 1. Okay, अच्छा कितना बजा अभी? ओके ताले आज के था के ऑफ द 45 ऑफ द ना टाइम Yes, ma'am. 50 অবধি 50 45 অবধি ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকে থাক এই অবধি আমরা করব, ঠিক আছে? we will discuss the other slides which is your design, ठीक है? we will discuss design procedure, ठीक है? we will take ये है जो बोला था 3 फॉर्मूला से हमको चाहिए and this is the cutters equation. ফর্মুলা ম্যাম না অন্য কিছু? फॉर्मूला ये था, देखो मैनिंग्स ये वाला है, चेजिस ये है, कटर ये वाला है और ये कटर इक्वेशन ही यूज करता है. ओके, एंड दीज आर द 2 केसेस. क्या क्या है कि प्रॉब्लम में क्या क्या डाटा दिया रहेगा तो हमको कैसे डिजाइन करना है. तो मेनली 2 केस है, केस 1 एंड केस 2. ओके, एंड डिपेंडिंग अपॉन आफ्टर डिस्कशन वी विल ड्रॉबैक तो है ही, वो डिस्कस करेंगे. विल सॉल्व सम स्मॉल न्यूमेरिकल्स. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास. ओके देन दिस Okay, मच ma'am. फॉर टुडे. থ্যাংক ইউ ম্যাম ओके, Thank you, जितना ma'am. भी की अब समझ. থ্যাংক ইউ ম্যাম wait Thank you, ma'am. okay wait let me take the attendance. okay ঠিক আছে তা এবার লিফট করতে Thank you, ma'am. ওয়েলকাম.